Hello, students. Welcome back to my YouTube channel, Agriculture at a Glance. Student, today I come with a very interesting and knowledgeable video related to a agronomic subject, that is cultivation of sugarcane. Before starting the video, I request you all please like, share and subscribe my channel. So, let's get started. Sugarcane, botanically known as Saccharum officinarum, belongs to the family Poaceae. Poaceae is the grass family. Several species come under Saccharum genus, like Saccharum barberry, which is known as Indian cane, and Saccharum spontaneum, known as wild type cane. Now we come on our next slide, that is importance of sugarcane. Sugarcane is rich in antioxidants, so it helps in fighting against infections and boosts the immunity. Rich in iron, magnesium, calcium and other electrolytes, so it is great for dehydration. It also helps in curing the common cold and fever both. As you all knows, sugarcane itself work as antioxidant, so it helps in fighting against infection and it also boosts the immunity in our body. And sugarcane contains some electrolytes and iron, magnesium, etc. So it is great in dehydration also. 62% world's sugar is made from cane. India alone required 16 to 20 million tons. Sugar industry is the largest agro-based industry next only to the textile in India. वर्ल्ड में शुगर जो है 62% सिर्फ केन से ही बनाई जाती है और शुगर केन इंडस्ट्री एक लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जस्ट आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Now we come on our next slide, that is related to the importance of the sugarcane juice. Sugarcane juice itself contain some properties which help in curing some diseases or improving skin condition or normal functioning of organs, etc. Some points are as follows. Sugarcane juice can be consumed by diabetic patient too. It acts as an energy booster, treat febrile disorder also, helps in normal functioning of the kidneys. Sugarcane juice is very helpful in the normal functioning of the kidney and some kidney disorders also. It prevents tooth decay, helps during pregnancy, and sugarcane also helps to combat skin conditions. These are the some important properties of the sugarcane juice which help in curing some disease or skin disorder or normal functioning of some body organs, etc. Now we come on uses of the sugarcane. Some points are as follows. First point is like molasses along with cane juice and other byproducts can be fermented and then distilled to produce an alcoholic distilled known as rum. Treat bioplastic, that is eco-friendly, using sugarcane as a primary ingredient. Third point is when combined with other ingredients including lime, sugarcane can be used to create an organic fertilizer and soil improver. Now we come on our next slide, that is related to the soil and climate of the sugarcane. Means for the sugarcane cultivation, which soil we have to choose or in which climatic condition sugarcane easily grow. Some points are as follows. It is a tropical plant, requires warm humid condition. शुगरकेन एक ट्रॉपिकल प्लांट है और जो है वार्म ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए और जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड
होना चाहिए। रेनफॉल 1500 to 1800 mm per annum. And sandy loam to clay loam soil is suitable for the cultivation of sugarcane. Well-drained loamy soil is also suitable for the cultivation of sugarcane, but saline, alkaline and acidic soil are not suitable for crop, means not suitable for sugarcane cultivation. And pH should be 6 to 8. शुगर केन कल्टीवेशन के लिए अगर आपके पास एक वार्म ह्यूमिड कंडीशन है और टेम्परेचर आपके एरिया के 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, रेनफॉल 1500 to 1800 mm पर एनम होती है, एंड सैंडी लॉम टू क्ले लॉम विथ पीएच बिटवीन 6 to 8 है, तो आपकी एरिया सुटेबल है। प्लांटिंग सीजन और ऑटम प्लांटिंग इन अक्टूबर इन नॉर्थ इंडिया, एंड अनसली प्लांटिंग जो होती है वो होती है जून जुलाई में, और एक सली प्लांटिंग जो होती है वो होती है जनवरी टू फेब में। सीड रेट देख लेते हैं। सीड रेट कुछ इस तरह है, सेट्स 6 to 15 टन पर हेक्टेयर, मीन्स 30,000 to 80,000 सेट्स पर हेक्टेयर डिपेंडिंग ऑन द प्लांटिंग मेथड। आप किस तरीके की प्लांटिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सीड रेट। Spacing 80 centimeter between rows for early planting varieties and 90 centimeter for mid-late varieties. Some varieties are as follows: CO 6907, CO 2001 and 2003 V46 are early maturing varieties. CO for Coimbatore and 83 are 23, CO 86032 and CO 7219 are mid-late maturing varieties. कुछ varieties अर्ली मैच्योरिंग की है, कुछ मिड लेट की है, कुछ लेट मैच्योरिंग की है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी varieties लगा रहे हैं, कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस पर स्पेसिंग डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को शुगर केन कल्टीवेशन में ध्यान रखनी है। इरिगेशन, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल केन फील्ड ऑपरेशन। Once in 6 days during summer and once in 15 to 21 days from November to harvest. इरिगेशन में देखें तो शुगर केन के फील्ड में डिप इरिगेशन सिस्टम बहुत यूज़फुल होता है और इसी को यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे, जहाँ पे ज़्यादा हेक्टेयर पर हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है, वहाँ पे जो है ड्रिप इरिगेशन को ही यूज़ किया जाता है। समर्स में जो है 6 दिन के अंतराल पे जो है एक इरिगेशन देनी होती है, और वहीं पे अगर विंटर सीज़न नवंबर में चले जाएं, नवंबर से लेकर हार्वेस्ट होने तक जो है 15 to 21 डेज़ के इंटरवल पे जो है एक इरिगेशन दिया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन अराइज होता है या फिर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि शुगर केन में किस तरीके का इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। Now we come on our next slide, that is related to the intercultural operation and intercrops. All the lighter and finer operations carried out on the soil between sowing and harvesting are termed as intercultural operation. इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो किया जाता है, जैसे कि आपने प्लांटिंग की, फिर जो है जो बीच में कुछ खरपतवार आ गए या फिर जो है उसमें अर्दिंग अप करने की ज़रूरत पड़ी मॉइस्चर लेवल को देखते हुए, तो ये सारी चीज़ें इंटरकल्चरल ऑपरेशन में आते हैं, जैसे कि वीडिंग हो गया, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो गया, मल्चिंग हो गया, एट्सेट्रा। एंड शुगर केन में मशीनरी एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हेक्टेयर पर हेक्टेयर में प्रॉपर स्पेसिंग पे लगा हुआ है, वहाँ पे मशीनरी की यूज़ की जाती, मशीन की। अदरवाइज़ छोटे एरिया में लगा है तो फिर जो है बाई हैंड भी हो सकता है। अर्दिंग अप at about 4 months after planting, propping the crop by trash, twist,
ट्वाइस और थ्राइस डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि कब जो है अर्थिंग करनी है, कब उसमें प्रॉपिंग करनी है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉप। Intercrop can taken when crop planted in a spacing of 18 0 centimeter and more between the rows. Short duration peppers or ground crops like soya bean, green gram, wheat, watermelon, vegetables like onion, potato, cucumber, rich gourd, flea bean, etc. are used in intercrop in the field of the sugarcane just only for utilizing the of the sugar cane और यूटिलाइजिंग द रिमेनिंग एरियाज, जो छूट जाती हैं एरियाज बीच बीच में, उनमें जो है ये सारे छोटे क्रॉप जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जो जल्दी हार्वेस्ट हो जाते हैं, इनको लगा करके उससे अर्निंग भी ली जाती है और उस लैंड की यूटिलाइजेशन भी की जा सकती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फार्म यार्ड मैन्योर 25 टन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 112 kg, जो कि जो है दो स्प्लिट ऑफ डोजेज में दिए जाते हैं। फर्स्ट 45 DAP एंड सेकेंड 90 DAP। DAP मीन्स डेज ऑफ प्लांटिंग, जिस दिन प्लांटिंग की गई उससे 45 दिन के इंटरवल पे पहला डोज दिया जाएगा नाइट्रोजन का, एंड जिस दिन प्लांटिंग की गई है उससे 90 डेज पे जो के इंटरवल पे जो है नाइट्रोजन का दूसरा डोज दिया जाएगा। फॉस्फोरस 100 kg per hectare is suitable for cultivation of sugarcane. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स भी जो है वैरायटी टू वैरायटी हो गया या फिर एरिया टू एरिया हो गया, या फार्मर अपने अंदाजे से जो डालते हैं थोड़ा बहुत वैरी कर जाता है, बट दिस इज़ आइडियल फॉर द cultivation of the sugarcane. Now we come on next slide, that is weed management and harvesting and yield. Application of the atrazine at the rate 5 kg per hectare in 1125 liter of water to be spread on the third and fourth days after planting, depending on the soil moisture. सॉइल मॉइस्चर पे को देखते हुए जो है अगर कमी आ रही है या फिर जो है वीट का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तब जो है कुछ वीट मैनेजमेंट किए जाते हैं। वीट मैनेजमेंट केमिकल स्प्रे करके या फिर कुछ वीडीसाइड हो गए उनको स्प्रे करके भी किया जा सकता है, एंड टाइम मशीनरी के थ्रू, जैसे घास वगैरह निकल आई है ग्रासेस तो उनको हटा देना, या फिर जो है हैंड के थ्रू ही जो है हटा देना। ये सारी चीज़ें करके वीट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग। क्रॉप हैज़ टू बी हार्वेस्टेड एट पीक मैच्योरिटी डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी, डेट ऑफ प्लांटिंग एंड जूस क्वालिटी। हार्वेस्टिंग जो है डिपेंड करती है प्लांटिंग पे, जो है किस डेट पे प्लांटिंग लगाई गई है एंड कौन सी वैरायटी लगाई गई है, बिकॉज वैरायटी टू वैरायटी जो है हार्वेस्टिंग जो है वैरी करती है। एंड जूस क्वालिटी जब तक केन में अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तब तक उसको हार्वेस्ट नहीं किया जाता है। लास्ट में है ईल्ड। द एवरेज ईल्ड ऑफ द केन स्टॉक इज 60 to 70 टन पर हेक्टेयर, मीन्स 24 to 28 लॉन्ग टन पर एकड़ एंड 27 to 31 शॉर्ट केन टन पर एकड़। ये भी जो है वैरायटी टू वैरायटी वैरी कर जाती है। ईल्ड किसी वैरायटी में जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, या फिर जो है किसी में जो है कुछ कम भी हो सकता है या हो जाता है। इसलिए जो है ईल्ड ऑन एन एवरेज 60 to 70 टन पर हेक्टेयर होती है। शुगर केन में कुछ इंसेक्ट पेस्ट हो गए एंड डिजीज़ हो गए, वो भी लगते हैं, जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट हो गया अर्ली सूट बोरर, इंटरनोडल बोरर, स्केल इंसेक्ट, मिलीबग, वाइट फ्लाई एट्सेट्रा। ये सारे जो है कुछ इंसेक्ट पेस्ट की लिस्ट है जो कि शुगर केन में लगती है, और इनके मैनेजमेंट के लिए कुछ जो है कीटनाशक दवाइयाँ हो गई और
केमिकल्स हो गए उनका स्प्रे करके इसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि डाइमिथुएट, मिथाइल पैराथियोन एट्सेट्रा। ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट होती है। डिजीज़ेस कुछ हो गए ऐसे कि स्मर्ट हुआ, विल्ट हो गया, रेड रॉट हो गया, विल्ट हो गया, सूखा पड़ने लगा केन, मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचने से पहले ही सूख के गिरने लगता है तो उसको विल्ट कहते हैं। तो इन सब के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ जो है डिजीज़ केमिकल स्प्रे किए जाते हैं डिजीज़ के कंट्रोल के लिए, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैलाथियोन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव होती है डिजीज़ मैनेजमेंट में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्ली हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप रेसिड्यू शुड बी बर्न। अगर डिजीज़ लग रही है तो फिर उसकी हार्वेस्टिंग थोड़े पहले कर लीजिए। एंड जो क्रॉप रेसिड्यू है जिस पे डिजीज़ लगी है उन सबको कट करने के बाद बर्न कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, डिजीज़ फैलेगी नहीं और जो है अंडर कंट्रोल भी आ जाएगी। Now we come on our last slide and the last topic of the sugarcane cultivation, that is post harvesting system. शुगर केन के मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचने के बाद उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है उनकी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, या फिर हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रक्रिया किया जाता है उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग कहते हैं। और शुगर केन में भी कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से टेबल में है। हार्वेस्टिंग पहले की जाती है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्री में या फिर जो है आपका जहाँ पे गोडाउन वगैरह है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तब वहाँ पे वॉशिंग होती है, मिलिंग होगी। अगर जो है चीनी वगैरह के शुगर बनाना है तब मिलिंग की जाती है। फिर फिल्टरिंग एंड सेटलिंग की जाती है। आफ्टर दैट जूस प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। अगर शुगर केन का कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका जूस की प्रिपरेशन किया जाता है, उस जूस को क्लियर किया जाता है। फिर कंसंट्रेशन एंड कुकिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस के थ्रू जो है शुगर केन इंडस्ट्री में जा कर के शुगर बनता है, या फिर कुछ शुगर सिरप हो गए, या फिर शुगर केन के जूस निकाले जाते हैं। तो इन सब के थ्रू ही शुगर केन के बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को शुगर केन कल्टीवेशन के बारे में इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। मैं ट्राई की सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड शेयर करिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो स्प्रेड हो सके स्टूडेंट के बीच में और उन लोगों को नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में या हॉर्टिकल्चर के बारे में मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।